Neil Miller and John Dollar theory says that whatever the practices we are doing today or whatever our habits are, all of these things develop through reinforcement and conditioning. So the example for this thing is you go to your college like every day on time. So your this habit is being appreciated by your parents and your teachers. So therefore, this thing has become your habit that you have become punctual in your life. Similarly, there are like children out there who, like there are boys who sort of try to smoke because of the company they have. So their parents, reprimand them or punish them because they are trying to smoke. Because of the punishment, because of the punishment, they sort of try to stop making the habit of smoking, or they stop sitting with those friends who go for smoking. So this thing is very clear to us. Whatever our habits are, these things are developed on the basis of either punishment or reinforcement. Or there are several other examples that we can discuss in this. And For example, your brother who does rash driving, and he is being, punished by his father that he is not allowed to drive the car. So because he was punished on driving, on driving rash, therefore he's not allowed to use the car. And because of the punishment, he stops, from driving speedily, or by doing the rash driving. सो हम जिंदगी में जो भी कर रहे होते हैं वो हमें नतीजा होता है कंडीशनिंग का, रीइंफोर्समेंट का। हमारी जो भी आदतें आज हमने अपनाई हुई हैं वो हमें सिखाई गई हैं। किस बुनियाद पे? या तो हमें रीइंफोर्समेंट करके, यानी कि हमें अप्रिशिएट करके उनका हमें आदी बनाया गया, और हमें जिन चीज़ों से रोका गया वो पनिशमेंट के थ्रू रोका गया। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो स्मोकिंग करने लगा है और उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, उसका बाहर जाना बंद कर देते हैं, उसको पनिश करते हैं, तो उसका जो ये बिहेवियर है स्मोकिंग का वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका कोई भाई है, वो उसको रैश ड्राइविंग करता है, बहुत तेज गाड़ी चलाता है, और उसको ये पनिशमेंट मिलती है कि उसको इजाजत नहीं मिलती गाड़ी चलाने की, तो इस वजह से जो उसका बिहेवियर था रैश ड्राइविंग का वो खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से हम अपनी जिंदगी में अगर जो है वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, या कोई हम आदी होते हैं एक्सरसाइज के लिए, कोई भी काम जो हम आज कर रहे हैं उसके लिए हमें अप्रिशिएट किया जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ हमारी आदत बन जाती है। सो दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट जो हमारी आदतें हैं वो किसी ना किसी वजह से हैं, कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट की वजह से वो हमारे अंदर डाली गई हैं, उसका हमें आदी बनाया गया। और नील मिलर एंड जॉन डॉलर्ड की अकॉर्डिंगली देयर इज अदर थिंग कि हमारे अंदर जो है ना वो एग्रेशन जो है और फ्रस्ट्रेशन तब इंसान के अंदर आती है जब वो कोई अपना जिंदगी में काम करना चाह रहा हो और उसका वो काम कंप्लीट ना हो। ये भी बेसिकली इनकी जो एक और थ्योरी है जो कि इसके अंदर ऐड की गई है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन जो पावर सप्लाई जो है वो कट हो जाती है, बिजली चली जाती है। सो यू विल नॉट बी एबल टू डू योर वर्क, या अगर आपके पास फोन नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, तो जब आपका काम जो है वो हैम्पर होगा, उसमें ऑब्स्टेकल आएगा, बैरियर आएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू योर वर्क। तो आपके अंदर एग्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें आ जाती हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर सो फार। So, we will discuss the two terms before starting our next topic, which is of tests of personality. So, reliability and validity. I want to talk about both the terms because these terms are repeatedly used in the upcoming topic. So, reliability is something that that gives you the same result every time you do. So, for example, you go to McDonald's and you get the same taste every time, right? So there is this consistency. The results are always same. The taste is always remain the same, right?
This is one of the example of reliability. Other example of reliability is like whenever you weigh yourself on the weighing machine, so it gives you the same result, like you are not doing any sort of dieting or exercise. तो अगर आपने 1 week पहले अपना वेट चेक किया, योर वेट इज अराउंड 50 kg 45 kg, और वो 2 weeks के बाद भी उतना ही रिजल्ट, सेम रिजल्ट, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, इट मीन्स कि हमारी मशीन रिलायबल है। सो और वैलिडिटी ये होता है कि क्या वो चीज़ वो असेस भी कर रही है जो उसको असेस करना चाहिए, या वो उसको कोई और चीज़ असेस कर रही है। अब अगर हम ड्राइविंग टेस्ट की बात करें, जो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद लाइसेंस दिया जाता है, यू बिकम अ लाइसेंस ड्राइवर, दैट यू आर अलाउड टू ड्राइव द कार ऑन द रोड। सो हम एक उसी ड्राइविंग टेस्ट को वैलिड कहेंगे जो कि प्रॉपरली हर तरह से ड्राइविंग की चीज़ों को मेजर कर रहा है। अब अगर एक टेस्ट जो कि उसको नाम तो ड्राइविंग का दिया जा रहा है, लेकिन वो सही से ड्राइविंग टेस्ट के सारे रूल्स को असेस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है वो टेस्ट वैलिड नहीं है। हमने जो आगे टेस्ट पढ़ने हैं जो कि पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए होते हैं, और उनके अब हमने हर जो टेस्ट के बारे में ये है कि वो टेस्ट रिलायबल वैलिड है या नहीं। अब एक वही टेस्ट जो है वो अच्छा टेस्ट कहलाया जाएगा जो कि रिलायबल है और वैलिड भी है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक मूड चेक करने का या डिप्रेशन को चेक करने का एक टेस्ट बनाया गया है, एक क्वेश्चनेयर बनाया गया है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाया गया है, सवालनामा है, तो अगर वो हर बार यानी कि सेम रिजल्ट देता है, वो टेस्ट जो है सेम रिजल्ट देता है, यानी कि अगर एक पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसका 1 week पहले आपने डिप्रेशन मेजर किया और आप 1 week के बाद भी करे हो, तो अगर वो मेडिसिन पे है या उसने काउंसलिंग लेना स्टार्ट की है, तो समहाउ उसके स्कोर में तो फर्क आएगा ना। अब ऐसे नहीं होगा कि वो मेडिसिन भी ले रहा है, काउंसलिंग भी ले रहा है, तो या तो उसके स्कोर्स एकदम से बहुत कम हो गए या एकदम से बहुत ज्यादा हो गए, यानी कि वो रिजल्ट कंसिस्टेंट अगर नहीं दे रहा, इसका मतलब है वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। और वैलिडिटी हम उस टेस्ट की इस तरह से चेक करेंगे, क्या ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मूड से रिलेटेड मेजर कर रहा है, या इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो कि बेनिफिशियल या रिलेटेबल हैं ही नहीं मूड के टॉपिक से। तो इस तरह से हम उस टेस्ट को कहेंगे कि वो टेस्ट वैलिड है। So the next is about the objective test of personality. So basically, psychologists have designed different tests to assess the personality. Personality assess होती है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने जॉब के लिए उसको हायर करना है, उसकी पर्सनालिटी असेस होगी। आर्मी को ज्वाइन करने के लिए पर्सनालिटी को असेस किया जाता है कि हम जिस पर्सन को हायर कर रहे हैं, इज दिस पर्सन possess that personality, that is that person be able to carry out that job in a good way or not. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन की जो उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया गया और ये देखा गया कि वो तो बहुत यानी कि वो तो बहुत एग्रेसिव है, और जबकि उसकी जॉब की डिमांड ये है कि उसने बहुत सारे लोगों को मिलना है, पब्लिक डीलिंग करनी है, तो अगर उसकी पर्सनैलिटी में असेस हो जाता है दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंगर इश्यूज, तो दैट पर्सन विल नॉट बी हायर्ड फॉर दैट जॉब। तो इसलिए ये टेस्ट डिजाइन किए गए। अब टेस्ट की भी दो तरह की टाइप है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड the other type of the personality are called as the projective test of personality. और objective test of personality are just like जैसे कि your objective part of the your question paper, जिसमें MCQs होते हैं, ठीक है, जिसमें yes और no का आंसर आपने उसमें से मार्क करना होता है। एक स्टेटमेंट होती है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, इस तरह के टेस्ट्स हैं, yes no की, या मल्टीपल चॉइस, या मतलब एक से दो से ज्यादा चॉइसेस दी होती हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो टेस्ट टेकर है वो उसमें से एक चॉइस को जो उसके साथ बेस्ट सूट कर रही होती है, उसको लगता है कि वो सही है, वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। इस तरह के पेपर्स में इस तरह के पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ भी गलत या सही नहीं होता। बेसिकली हर जो टेस्ट टेकर है वो अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट को अटेम्प्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको स्कोर किया जाता है। I have made the list which is given in your book, that is required for the time being that we are going to study further. So all of these tests are objective tests of personality, and most importantly, which are in use these days, is MMPI and 16PF.
And be very sure that what does MMPI stand for and 16PF. So MMPI stand for the Minnesota Multiphasic Personality Inventory, 16PF, the 16 personality factors. So we also be very sure about the abbreviation of these personality tests. So MMPI questions, what sort of questions do they look like? I have put the picture and you can go through that. So basically, in the beginning when MMPI was designed, there were like 566 questions, but later on these questions were reduced to 550. और ये बेसिकली इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि लोगों की मतलब अनहेल्दी और हेल्दी पीपल जो है वो उनके दरमियान में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। हेल्दी पीपल यानी कि वो लोग जो मेंटली यानी कि सही काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और अनहेल्दी लोग जो कि मेंटली किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, ओसीडी है, और स्किज़ोफ्रेनिया, या कोई उनके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है ना डिविएटेड है वो उनकी आदत। तो अनहेल्दी लोगों के इस तरह से लोग असेस होते हैं। एमएमपीआई के 4 वैलिडिटी स्केल्स हैं और 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं। 4 वैलिडिटी स्केल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि वैलिडिटी क्या होता है, यानी कि क्या वो जो टेस्ट है वो उस चीज को मैयर भी कर रहा है जो उसको मैयर करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस उसके अंदर एडिड हैं क्या, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस हो गए। तो वैलिडिटी इस चीज को कहते हैं, इज इट मेजरिंग व्हाट इट्स सपोज टू मेजर। और क्लिनिकल स्केल इसमें 10 है, जो कि यानी कि 10 डिफरेंट जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, डिप्रेशन, बाइपोलर, हाइपोमेनिया। सो इस तरह की 10 बीमारियां हैं जिसपे 10 तरह के क्लिनिकल स्केल्स दिए गए हैं। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, सो बेसिकली इसमें 16 फैक्टर्स जो है ना, 16 पर्सनालिटी टाइप्स मेजर की जाती हैं कि इंसान काम है, एग्रेसिव है, इंटेलिजेंट है। सो इस तरह की 16 खसूसियात पर जो है ये टेस्ट कंसिस्ट करता है। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री, इट हैज 3 वैलिडिटी स्केल्स, और इसके जो क्वेश्चन टाइप है वो मैंने मेंशन कर दिया है। उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो है वो आंसर चूज करना होता है। इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आंसर चूज करना होता है। एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस स्केल, सो बेसिकली इसमें 15 पर्सनालिटी नीड्स को मेजर किया जाता है। हमने जो है वो ऑलरेडी एक चैप्टर में नीड्स को, मोटिव्स को डिस्कस किया है कि इंसान की प्राइमरी नीड होती है। प्राइमरी नीड्स में हमारे पास सर्वाइवल की नीड्स आ जाती हैं, थर्स्ट, हंगर, इस तरह की, ठीक है। और फिर सेकेंडरी नीड्स होती हैं कि नीड फॉर पावर, एग्रेशन, और ऑल ऑफ दीज थिंग्स के नीड फॉर टू फॉर्म रिलेशनशिप्स विद अदर। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी नीड्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और पर इससे रिलेटेड जो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या मेजर करते हैं, वो आई हैव पुट इट हियर। कि इंसान की अचीव करने की ख्वाहिशात को मेजर करना, और वो कितना ज्यादा इंसान में टेंडेंसी है कि वो दोस्त दोस्त बनाए, उसमें कितनी टेंडेंसी है एग्रेशन की। और क्या वो ऑर्गेनाइज्ड इंसान है, यानी कि क्या वो अपना काम करने से पहले उसको डिटेल पता होती है, या मतलब वो बस ऑल ऑफ अ सडन अपना काम स्टार्ट करता है। तो इस तरह की जो ट्रेड्स को ये वाला स्केल एड्रेस करता है। ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट, ये दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट चेकलिस्ट। उसमें इस तरह ट्रेट्स, आपकी खसूसियात जो है ना, वो एक लिस्ट की फॉर्म में दी गई होती हैं। जो टेस्ट टेकर होता है वो अपने अकॉर्डिंगली जो उसको स्टेटमेंट सही लगती है उसको चूज कर लेता है। अपनी जो उसकी खसूसियात हैं, पसंद नापसंद, उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स बनी होती हैं, और वो उन लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट में से चूज कर लेता है। So next is the projective test of personality. So before starting off, I would like to discuss के projective test of personality और हमारे पास जो objective test of personality में क्या फ़र्क है। Objective test of personality, they are just like your objective part of your paper जिसमें MCQs होते हैं, yes, no, true, false, या आप दो से ज्यादा जो है वो चॉइसेस होंगी, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, उसमें से आपने चूज करना होगा, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी अभी हमने कवर की।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी वो टेस्ट होते हैं दैट यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर ओन ओपिनियन, दैट यू आर नॉट अलाउड टू गिव द डिटेल आंसर। आपने सिर्फ वही चूज करना है उन्हीं ऑप्शंस में से जो कि आपको दी गई हैं। लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, इसमें द पर्सन हैज द चॉइस टू गिव द डिटेल्ड आंसर अबाउट समथिंग। उसमें चॉइसेस नहीं दी गई होती बल्कि एक डिटेल आंसर उसमें जो जो टेस्ट टेकर है वो शेयर करता है, जो टेस्ट सवालनामा अटेम्प्ट करने वाला। और इन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी का पर्पस ये है, ये इसलिए बनाए गए कि इंसान को मौका दिया जाए कि वो उन चीज़ों के बारे में बात करे। और और बेसिकली वो उसकी अनकॉन्शियस जो पार्ट ऑफ माइंड है, लाशाउरी दिमाग का हिस्सा है, वो इंसान अपने लाशाउरी दिमाग के हिस्से को की ही बात करता है। तो ताकि उसको मौका मिले और वो उस चीज़ के बारे में बात करे और उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जा सके। RISP जो है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस टेस्ट है। आई हैव लाइक पुट द पिक्चर दैट यू कैन सी लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस लुक लाइक। तो अच्छा, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दी होगी इनकम्प्लीट, आई लाइक, आगे ब्लैंक। अब the happiest time blank. This is completely up to the test taker with which he or she wants to fill that blank. जो भी उसके दिल में, उसकी सोच में, उसके नजरिए में है वो उससे उस ब्लैंक को फिल कर देगा। इसका पर्पस ये होता है कि इंसान जो है सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं वाकयात को बताता है जो कि वो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर चुका होता है, अपने लाशऊरी हिस्से को बताता है। अब नेक्स्ट इज रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। ये इस तरह से बेसिकली ब्लैक इंक यूज की गई, डिफरेंट तरह की पिक्चर्स बनाई गई और ये कार्ड्स की फॉर्म में होता है। और कार्ड्स जो है वो एक कार्ड पे एक पिक्चर होती है, वो क्लाइंट को दी जाती है, उस पे ये कहा जाता है कि वो स्टोरी इस पे बनाए। अब इंसान वही स्टोरी बनाता है जो उसने तजर्बा की हो जिंदगी में, जो उसने सुनी हो, जो उसने देखी हो। एक इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल इस तरह से है कि इंसान अपने सिर्फ अनकॉन्शियस के बारे में ही क्यों बात करता है, कि एक वो बंदा जिसने जो है वो फॉर एग्जांपल जिसने दुबई नहीं देखा हुआ, या फॉर एग्जांपल जिसने स्विट्जरलैंड नहीं देखा हुआ, तो वो उसके बारे में बात भी नहीं करेगा। ठीक है। जिसने फॉर एग्जांपल दैट पर्सन हैज विजिटेड यू नो, उसने जो है वो सऊदीया विजिट किया हुआ है और UK विजिट किया हुआ है, तो वो उन्हीं चीजों के बारे में बात करेगा। ठीक है। तो इसीलिए जब इंसान को तस्वीर दिखाई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो उन्हीं चीजों के बारे में जिक्र करता है जो उसने एक्सपीरियंस की हो, तजर्बा की हो, जो उसके माजी का हिस्सा रह चुका हो। अब जब ये इस तरह की पिक्चर्स वो में स्टोरी बना रहा होता है, तो जो टेस्ट टेकर है, जो कि टेस्ट कर रहा होता है, वो उससे जो है वो क्लिनिशियन ये पूछता है कि वो किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, और क्या ये पिक्चर जो है वो मूव कर रही है या नहीं, किसी इंसान की है, वो इस पिक्चर में से किस स्पेसिफिक पार्ट को शो कर रहा है, कलर के बारे में उसने बात की है या नहीं। तो इस तरह की जब वो उसे क्वेश्चंस पूछता जाता है क्लिनिशियन, उसकी स्टोरी के बाद जब उसको सुना चुका होता है, और उससे वो उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर रहा होता है। बेसिकली जो बच्चे जो हैं वो माजी में अब्यूज हो चुके होते हैं, उनका जो बचपन है वो बहुत तकलीफ दे होता है, और उनके पेरेंट्स और उनका घर जो है वो बड़ा ब्रोकन होता है, यानी कि पेरेंट्स से भी उनका ताल्लुक इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो ये कहा जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो पेनफुल मेमोरीज हैं वो उसको शेयर नहीं करता, वो उसको सप्रेस कर देता है अपने अनकॉन्शियस में, लाशऊरी हिस्से में, उसको बताना नहीं चाहता। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में होने वाली पेनफुल चीजों को नहीं बताते, क्योंकि हमें वो जब हम उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं, दोहराते हैं, तो हमारी बॉडी उसी पेन से गुजरती है जब वो उसने पहली बार हमारी बॉडी ने, माइंड ने तजर्बा किया। तो इंसान पेन नहीं लेना चाहता, खुश रहना चाहता है। तो इसलिए जब वो इंसान अपना सप्रेस किया हुआ अनकॉन्शियस इसी तरह उससे एक्सेस करवाया जाता है, इस तरह की जो पिक्चर्स दिखा के जो कि क्लियर नहीं है, फिर जब इंसान अपने दिमाग पे जोर डालता है, उससे मटेरियल एक्सेस करने की कोशिश करता है, स्टोरी बनाने की कोशिश करता है, तो वो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। Next is Holtzman ink blot technique. This is similar to the Rorschach ink blot test. नेक्स्ट इज थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। अब इसमें पिक्चर्स बनाई गई हैं,
ठीक है। हमने रॉरशार्क और होल्ड्समैन में तो देखा, ये तो अनक्लियर सी तस्वीरें हैं, मतलब इसमें इंसानों की तस्वीरें नहीं दी गई, ठीक है, जानवरों की, या एक टेस्ट टेकर अपने अकॉर्डिंगली देखेगा कि वो जो अटेम्प्ट कर रहा है कि ये जानवर की है, क्या नहीं। लेकिन ये जो टीएटी है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की एब्रीवेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसको टीएटी भी कहते हैं, तो उसमें इंसानों की पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ठीक है। और ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। बड़ों के लिए इस तरह के जो है ना, मैन वुमेन, इस तरह के पिक्चर्स दिखाई गई, बच्चों के लिए कार्टून्स की फॉर्म में दिखाई गई हैं पिक्चर्स। और वो जब बच्चों को दिखाते हैं या बड़ों को दिखाते हैं, ये कार्ड्स होते हैं डिफरेंट, तो वो उस पर स्टोरी बनाते हैं और इससे उन प्रिक्लिनेशन उनसे डिफरेंट क्वेश्चनिंग करते हैं, और इससे उनकी पर्सनैलिटी, उनका अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड असेस हो जाता है।